بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الف نیوز میں خوش آمدید۔ الف نیوز آپ کے لیے لے کر آیا ہے دنیا بھر کی ٹاپ سٹوریز، اور آج کی ٹاپ سٹوریز میں آپ جان سکیں گے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد کا پاکستان پہنچنے پر شاندار استقبال، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، 21 توپوں JF-17 تھنڈر کے ساتھ سلامی دی گئی۔ بھارتی نیوی کی ایک اور ناکامی، 21 روز تک پاکستانی آبدوز کا سراغ لگانے میں ناکام، اپنے ہی میڈیا نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ سمندر میں اسی جگہ جارحیت کرنے والے کا قبرستان بنائیں گے، ایران نے ڈرون گرانے کے بعد امریکہ کو وارننگ دے دی، نیا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ پاکستان امن و استحکام اور پائیدار ترقی کی طرف گامزن، امن و امان کی یہ صورتحال کوئی نہیں چھین سکتا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا پاکستان کا امن خراب کرنے والے دشمنوں کو بڑا پیغام۔ ایران نے امریکہ کا حملہ ناکام بنا دیا، کوئی نقصان نہیں ہوا، ایران کا سپر پاور کا غرور خاک میں ملاتے ہوئے کامیابی کا اعلان۔ بھارت کو ایک اور زوردار جھٹکا، پاکستان کے بعد ایران کی فضائی حدود بھی بند کر دی گئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع ہوگی یا نہیں، وزیر اعظم عمران خان نے بڑا فیصلہ کر لیا، معروف صحافی سمیع ابراہیم کا بڑا انکشاف سامنے آ گیا۔ سعودی عرب پر حملہ، حوثی باغیوں کا پھر سعودی سرزمین پر میزائل حملہ۔ حکومت کے خلاف تحریک، چیئرمین سینٹ کی تبدیلی، مولانا فضل الرحمان نے 26 جون کو APC بلانے کا بڑا اعلان کر دیا۔ قابض بھارتی فورسز نے مقبوضہ کشمیر کے علاقے شوپیاں میں فائرنگ کر کے 4 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہیڈ لائنز، اب بڑھتے ہیں آج کے سوال کی طرف۔ حکومت کو بجٹ منظور نہیں کروانے دیں گے اپوزیشن رہنماؤں کا بڑا اتفاق۔ تو ناظرین، ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا حکومت بجٹ منظور کروانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ جی ہاں، جی نہیں؟ تو دوستو، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے اپنی سکرین پر نظر آنے والے آئی کے بٹن پر کلک کر کے ووٹ کے ذریعے اپنا جواب ضرور دیجیے گا۔ ایک نظر ڈالتے ہیں کل کے پوچھے گئے سوال کے رزلٹ کی طرف۔ تو ناظرین، کل ہم نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ کیا امریکہ ایران پر حملہ کر سکتا ہے، اور 79% لوگوں کا کہنا تھا کہ جی نہیں، امریکہ کبھی ایران پر حملہ نہیں کر سکتا، اور صرف 20% لوگوں کا کہنا تھا کہ جی ہاں، امریکہ ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کے اپنے چینل الف نیوز میں خوش آمدید کہیں گے، اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں، اور خبر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد پاکستان کے 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ نور خان ایئر بیس پر وزیر اعظم عمران خان نے معزز مہمانوں کا استقبال کیا۔ امیر قطر کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی اور پھول پیش کیے گئے۔ امیر قطر کو وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، اور پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈرز نے سلامی دی۔ دفتر خارجہ کے مطابق امیر قطر وزیر اعظم عمران خان کی خصوصی دعوت پر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ اپنے دورے کے دوران وہ صدر مملکت عارف علوی اور وزیر اعظم عمران خان سمیت اعلی حکام سے بڑی ملاقاتیں کریں گے۔ ان ملاقاتوں میں معاشی اشتراک اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوگی، اور دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے لیے مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط بھی ہوں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بالاکوٹ واقعہ کے بعد تھر تھر کانپتی انڈین نیوی 21 روز PNS سعد کی تلاش میں ماری ماری پھرتی رہی۔ 60 جنگی جہاز اور کئی طیارے ایک پاکستانی آبدوز کا پتہ نہ چلا سکے۔ بالآخر بھانڈا پھوٹنے پر بھارتی میڈیا اپنی فوج پر برس پڑا۔
न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक हमेशा आग भड़काने वाला भारतीय मीडिया भी पाकिस्तान नेवी की जंगी महारतों का मुआतरफ निकला। इंडियन मीडिया के मुताबिक बालाकोट वाक़े के बाद PNS साद आला महारत का मुजाहरा करते हुए भारतीय नेवी की नजर से ओझल हो गई। पाकिस्तान की जदीद तरीन आबदोज ने जंगी पोजीशन ली तो भारत को खतरा पड़ गया कि कहीं आबदोज गुजरात के साहिल या मुंबई में मगरबी बेड़े के हेडक्वार्टर पर हमला न कर दे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 60 जंगी जहाजों और मुतअद्दिद तैयारे आबदोज की तलाश के लिए तैनात किए, मगर जदीद सैटेलाइट से मदद लेने के बावजूद इनकी भारतीय बहरिया को कामयाबी हासिल न हो सकी। 21 रोज बाद पता चला कि PNS साद पाकिस्तान के मगरबी हिस्से में भारत के खिलाफ पोजीशन संभाले हुए थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान का अमनो अमान, इस्तेहकाम और पायदार तरक्की की राह पर गामजन हो गया है। अमनो अमान की ये सूरत-ए-हाल अब कोई नहीं छीन सकता। बेहतर सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल से गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ रही है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज के दौरे के मौका पर यह खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान अमनो इस्तेहकाम और पायदार तरक्की की राह पर गामजन हो गया है। अमनो अमान की ये सूरत-ए-हाल अब कोई नहीं छीन सकता। उन्होंने कहा कि बेहतर सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल से गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार हो गई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि जनूबी एशिया में अमन का दारोमदार तनाज़ात के हल में है। बैनुल-अक़वामी ताउन की बदौलत अमन की कोशिशों को मजीद आगे बढ़ाया जा सकता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान के टेलीकॉम मिनिस्टर मोहम्मद जवाद ज़ारिक के मुताबिक अमेरिका का साइबर हमला नाकाम बना दिया गया है और इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। टेलीकॉम मिनिस्टर की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि अमेरिका ने बहुत कोशिश की लेकिन अपने इस हमले में कामयाब नहीं हो सका। इनका कहना था कि ईरान तवील अरसे से साइबर दहशतगर्दी का सामना कर रहा है और गुज़िश्ता बरस भी 3 करोड़ 30 लाख हमलों को नाकाम बनाया गया। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज अमेरिका ने ईरान की अस्करी तंसीबात पर साइबर हमला करके रॉकेट और मिसाइल फायर करने वाले कंप्यूटर्स को नकारा बनाने का दावा किया था। ईरान पर साइबर हमले का मकसद हथियारों के इस सिस्टम को नकारा बनाना था जो कि ईरानी इनकलाबी गार्ड्स के लिए इस्तेमाल है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत की हवाई जहाजों की कंपनी को ईरान की मुतासरा फजाई हदूद से दूर रहने की हदायत कर दी गई। भारतीय एयर कंपनियों को पाबंद किया गया है कि वो इस मकसद के लिए अपने फजाई रास्तों का अल्सर नो तयन करें। भारत के रियासती फैसले के तहत हवाई जहाजों की कंपनियां इस फजाई हदूद में दाखिल नहीं होंगी। इस हवाले से भारत के डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ने तमाम जहाजों की कंपनियों को हदायत जारी कर दी है कि वो ईरान की फजाई हदूद से दूर रहें। अमेरिका इसी जिमन में अपनी फजाई कंपनियों को पहले ही हदायत जारी कर चुका है। ईरान और अमेरिका के दरमियान मौजूदा कशीदगी में गुज़िश्ता चंद दिनों से काफी इजाफा हुआ है, जिसके बाद से मुख्तलिफ ममालिक की फजाई कंपनियां अपने रास्तों का असर नौ तयन कर रही हैं। भारतीय तैयारे की तबाही के बाद पाकिस्तान ने भी भारत के लिए फजाई हदूद बंद कर रखी है, जिसकी वजह से भारतीय फजाई कंपनियों को बड़े नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मरूफ सहाफी समी इब्राहिम ने एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में कहा है कि वजीर आजम इमरान खान आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की दूसरी बार के लिए मुद्दत मुलाजमत में तोसी करना चाहते हैं। समी इब्राहिम ने कहा है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 28 नवंबर 2019 को खत्म हो रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए एक ऑप्शन ये भी है कि इनकी मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की तोसी कर दी जाए। कुछ लोगों का कहना है कि आर्मी चीफ को मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तोसी दे दी जाएगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हौसी बागियों का फिर सऊदी सरजमीन पर मिसाइल हमला। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी शहर अबहा के एयरपोर्ट पर मिसाइल फायर किया गया, जिसके नतीजे में वहां मौजूद एक शख्स जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। मरने वाले शख्स का ताल्लुक शाम से बताया जाता है।
फौजी इत्तेहाद के तर्जमान कर्नल तुर्की अल-मालकी ने वाक़े की तफसीलात बताते हुए कहा है कि रात को ईरानी हमायत याफ्ता हौसी मलेशिया ने शोरश ज़दा यमन के इलाके से सऊदी अरब के अबहा एयरपोर्ट को निशाना बनाया। इस वक्त वहां सैकड़ों गैर मुल्की और मकामी अफराद मौजूद थे। इस मिसाइल हमले की जद में आकर एक शख्स जिंदगी से महरूम हो गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने 26 जून को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाने का बड़ा ऐलान कर दिया। हुकूमत के खिलाफ तहरीक और चेयरमैन सेनेट की तब्दीली के हवाले से फैसले किए जाएंगे। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 26 जून को बुलाने का ऐलान कर दिया। JUIFA के तर्जमान के मुताबिक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 26 जून को सुबह 11 बजे इस्लामाबाद में होगी। मौलाना फजलुर रहमान APC की क़यादत करेंगे। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। काबज भारतीय फोर्सेज ने मकबूजा कश्मीर के इलाके शोपियां में फायरिंग करके 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। तफसीलात के मुताबिक काबज भारतीय फोर्सेज ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म बर्बरियत जारी रखते हुए शोपियां में 4 कश्मीरी नौजवानों को फायरिंग करके शहीद कर दिया। कश्मीरी मीडिया का कहना है कि जालिम भारतीय फौज की जानिब से कश्मीरी नौजवानों की शहादत के बाद इलाके में गैर एलानिया कर्फ्यू नाफज कर दिया गया, जबकि इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विसेज भी बंद कर दी गई हैं। जी तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद।